बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, class 9th. Today we will learn unit 3 variations and we will solve exercise number 3.3. Now students, what do you mean by the third proportional? If three quantities A, B and C are related as A ratio B proportion B ratio C, then this C is known as the third proportional. Fourth proportional, if four quantities A, B, C and D are related as A ratio B proportion C ratio D, then this D is known as the fourth proportional. Mean proportional, if three quantities A, B, C are related as A ratio B proportion B ratio C, then this B is known as the mean proportional. Now students, in continued proportion, if three quantities A, B and C are related as A ratio B proportion B ratio C, where A is the first, B is the mean and C is the third proportional, then A, B and C are continued proportional. Now students, we are going to start exercise number 3.3, find a third proportional. Students, let the third proportional be x, then 6, 12 and x. Here we are going to find out the value of the third proportional. Let the third proportional be x. Then by proportion it can be written as 6 ratio 12 proportion 12 ratio x. Now students, as we know that the product of extremes is equal to the product of means. So here are the extreme values 6 and x. So 6 multiplied by x will be equal to the product of means. तो आपके पास mean values क्या हैं 12 and 12. 12 multiplied by 12 it will be equal to 144. 6 इधर multiply हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा divide. 6 ones are 6, 6 24s are 144. So your mean your third proportional will be 24. Now students, part number 6, p square minus q square over p cube plus q cube into p minus q over p square minus p cube plus q square. Students, we are going to find out the third proportion. So let the third proportional be x. So it can be written as by proportion p square minus q square over p cube plus q cube. और आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आप मीन में 2 टाइम्स राइट करेंगे और आपने लेट किया है थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या है x, so it can be written as x. As we know that student, the product of extreme is equal to the product of means. So p square minus q square over p cube plus q cube multiplied by x और p minus q over p square minus p cube plus q square multiplied by p minus q p square minus p cube plus q square. Now students, आपके पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब किसके इक्वल होगा p प्लस क्यू. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब इट विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर. सो the value of p cube plus q cube is equal to p plus q into p square minus p cube plus q square. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला. तो एक बार आप दोनों टर्म्स को लिखेंगे प्लस के साथ, एक बार दोनों टर्म्स को लिखेंगे माइनस के साथ. लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास कटिंग हो रही है. p माइनस क्यू कट होगा p माइनस क्यू के साथ, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कट होगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू क्यू स्क्वायर के साथ. p प्लस क्यू कैंसिल होगा p प्लस के साथ, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. सो इट विल बी योर थर्ड प्रोपोर्शनल. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. हियर वी हैव 5, 8 and 15 and we are going to find out the fourth proportional. Let the fourth proportional be x, then 5, 8, 15 and x. So it can be written by proportion 5 ratio 8 proportion 15 ratio 8. As we know that student, the product of extreme is equal to the product of mean. So 5 multiplied by x will be equal to 15 multiplied by 8. Now students,
15 8s are 120, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 5 1s are 5, 5 24s are 120, so the value of fourth proportion will be equal to 24. Now students, part number 4 solve करेंगे. x square minus 11x plus 24, सेकेंड टर्म है x माइनस 3 और थर्ड टर्म है 5x रेज टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब. स्टूडेंट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लिया, आपके पास a है. देन बाय प्रोपोर्शन इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x रेज टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो a. Now students, as we know that the product of extreme multiplied the product of means, so extreme values का product लेंगे और mean values का product लेंगे. आपके पास ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड. नाउ स्टूडेंट्स x माइनस 3 आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और इस ब्रैकेट में आपके पास कॉमन क्या है, आपके पास 5 कॉमन है और x क्यूब कॉमन है. जब 5x क्यूब कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रह गया x माइनस 8. और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हम करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग. मिड टर्म के ऐसे टू फैक्टर्स बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए. 8 3s are 24 एंड 8 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11. तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग के फैक्टर्स क्या होंगे माइनस 8x माइनस 3x. नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, x कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया x माइनस 8. नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस 3 कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 8. नाउ स्टूडेंट्स x माइनस 8 अगेन कॉमन है तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 3. स्टूडेंट्स x माइनस 3 कैंसिल होगा x माइनस 3 के साथ, x माइनस 8 कैंसिल होगा x माइनस 8 के साथ. सो द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू 5x क्यूब. Now students, we are going to solve the question number 3. Find mean proportional and the values are 20 and 45. Like students, अब आपने मीन प्रोपोर्शनल लेट फाइंड आउट करना है, तो हमने लेट कर लिया मीन प्रोपोर्शनल क्या है m. अगर मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या करना है मीन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो बाय प्रोपोर्शन इट कैन बी रिटन एज 20 रेशियो m प्रोपोर्शन m रेशियो 45. As we know that students, the product of extreme is equal to the product of means, so m into m will be equal to 20 multiplied by 45. 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 900 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया m स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 900. सो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 30. Now students, we are going to find out the mean proportional. Here we have two terms, x square minus y square and x minus y over x plus y. So let कर लिया mean proportional क्या है m. So by proportion it can be written as x square minus y square ratio m proportion m ratio x minus y over x plus y. Students, as we know that the product of extreme is equal to the product of means. extreme values का product लेंगे और mean values का product लेंगे. It will be equal to m into m x square minus y square multiplied by x minus y over x plus y. Students, as we know that m into m क्या हो जाएगा m square और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके पास a square minus b square का, तो it can be written as x plus y into x minus y multiplied by x minus y और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास x plus y. x plus y के साथ कैंसिल हो जाएगा. m square will be equal to x minus y क्या हो जाएगा x minus y का होल स्क्वायर. नाउ हमें मीन प्रोपोर्शनल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो m स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा. सो द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस y. Now students, we are going to solve the question number 4. Find the values of the letter involved in the following continued proportion. Students, here we have the letter p और continued proportion को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है इस लेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. By continued proportion, students, it can be written as 5 ratio p proportion p ratio 45. So students, as we know that the product of means is equal to the product of extreme. So p into p square
5 into 45, it will be equal to 225. P square will be equal to 225. P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, लेटर P की. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225. सो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ P विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 15. 225 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा? 15. Now students, we are going to find out the value of the letter involved in the following continued proportion. So the letter is P, but the whole term is 3P minus 6. So students, by continued proportion, it can be written as 12 ratio 3P minus 6 proportion 3P minus 6 ratio 27, as product of extremes equal to product of means. So 3P minus 6 into is equal to 12 multiplied by 27. स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 3P माइनस 6 का होल स्क्वायर. 12 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है? 25. 324. P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर. स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर. 3P माइनस 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324. सो 3P माइनस 6 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 18. नाउ स्टूडेंट्स, एक बार 3P माइनस 6 इज इक्वल टू 18 और 3P माइनस 6 विल बी इक्वल टू माइनस 18. 3P आपके पास था, माइनस 6 से इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 6, और इधर माइनस 6 था तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 6. नाउ स्टूडेंट्स, 18 प्लस 6 इट विल बी 24. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. और माइनस 18 प्लस 6 इट विल बी माइनस 12. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 8 और द वैल्यू ऑफ P विल बी इक्वल टू माइनस 4. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.